السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بچوں، ہم کیا پڑھے تھے پچھلی کلاس میں؟ ہم ایک بار اس کا جائزہ لیں گے۔ یہاں دیکھیں حروف تہجی کے جوڑے، یعنی سین شین، یہ دو ہے، ٹھیک ہے۔ صاد ضاد، یہ دو ہے۔ تو بچوں آپ غور کر رہے ہیں نا کہ اس میں کیا موجود ہے؟ سین کو کوئی نقطہ نہیں ہے لیکن شین کو 3 نقطے ہیں۔ صاد کو کوئی نقطہ نہیں ہے لیکن ضاد کو 1 نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ توئے کو کوئی نقطہ نہیں ہے لیکن زوئے کو 1 نقطہ ہے۔ عین کو کوئی نقطہ نہیں ہے لیکن غین کو نقطہ ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہاں پر دیکھیں فے خاف، فے کو 1 نقطہ ہے تو خاف کو کیا ہے؟ 2 نقطے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں مرکز والے حرف کون سے ہیں؟ کاف اور گاف۔ یہ کیا ہے بچوں؟ مرکز والے حرف ہے۔ تو بچوں یہ بات اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ یہ کون سے حرف ہیں بچوں؟ مرکز والے حرف، یعنی یہ جو دکھ رہے ہیں یہ لکیر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکز کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ مرکز، کاف کو کتنے مرکز ہیں؟ 1 مرکز ہے نا۔ گاف کو کتنے مرکز ہیں؟ 2 مرکز ہیں۔ بچوں یہ اچھے سے آپ ذہن نشین کر لیں، کیونکہ یہ آپ کو ہم اگر ایگزام میں پوچھیں کہ مرکز والے حرف کتنے ہیں تو کتنے ہیں؟ یہاں پر 2 ہیں۔ کاف کو کتنے مرکز ہیں؟ 1 مرکز ہے۔ گاف کو کتنے مرکز ہیں؟ 2 مرکز ہیں۔ اس طرح سے ہم سوال آپ سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اب یہاں دیکھیں غین، غین سے پہلے کون سا حرف آتا ہے؟ کون سا حرف آ رہا ہے بچوں؟ عین۔ عین سے پہلے کون سا حرف آتا ہے؟ کیا آ رہا ہے بچوں؟ غین۔ تو اسی طرح سے ہم آپ کو ایگزام میں ہے نا سوال کریں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آپ ہے نا اچھے سے یہ ذہن نشین کر لیں گے۔ وہ کون سے جوڑے ہیں؟ نہیں، حرف تہجی کے جوڑے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ سین کا جوڑا ہے، صاد کا جوڑا ہے، توئے کا جوڑا ہے، عین کا جوڑا ہے، فے کا جوڑا ہے اور کاف کا جوڑا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم یہ کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں صاد سے پہلے کون سا حرف آتا ہے؟ کون سا آ رہا بچوں؟ سین شین کے بعد ہم کیا بولے؟ صاد ضاد بولے۔ تو صاد سے پہلے کون سا حرف آ رہا؟ شین۔ یا پھر یہاں دیکھیں زوئے، زوئے کے بعد کون سا حرف آ رہا؟ عین، ٹھیک ہے بچوں۔ اس طرح سے پہلے آنے والے حرف کون سے ہیں، بعد میں آنے والے حرف کون سے ہیں، اس کو بھی آپ اچھا ذہن نشین کر لیجئے۔ تو یہاں پر دیکھیں سین شین، صاد ضاد، توئے زوئے، عین غین، فے خاف، کاف گاف، ٹھیک ہے۔ یہ شین کو کتنے نقطے ہیں؟ 3 نقطے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک سین والے کو کتنے نقطے ہیں؟ سین سے سیب والے کو کوئی نقطہ نہیں ہے لیکن شین سے شیر بول کے جو آواز لانگ آواز آ رہی ہیں اس کو کتنے نقطے ہیں؟ 3 نقطے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ کبھی نہیں بھولنا ہے آپ کو۔ صاد ضاد، صاد کو کوئی نقطہ ہی نہیں ہے لیکن ضاد کو 1 نقطہ ہے۔ اس طرح سے آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے۔ تو یہاں دیکھیں یہاں پر سین، سین سے سیب دکھ رہا ہے، شین سے شیر، صاد سے صراحی، ضاد سے ضعیف، توئے سے طوطا، زوئے سے ظروف، عین سے عینک ہے نا، عین سے عینک بھی ہے ہمارے پاس، عین سے عمارت بھی ہے، غین سے غبارہ، فے سے فٹ بال، قاف سے قرآن، کاف سے کبوتر، گاف سے گلاب، ٹھیک ہے۔ کاف کا ہے، یہ کاف ہے نا، کاف سے کبوتر، گاف سے گلاب۔ اس طرح سے یہ کیا تھے ہمارے پچھلے اس میں ہم ہے نا پڑھے تھے، پچھلے سبق میں ہم یہ پڑھے تھے۔ تو اب دیکھیں الف سے کیا آئیں گا بچوں؟ الف سے انار بھی آتا، الف سے انگور بھی آتا اور الف سے انناس بھی آتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ الف سے انناس، الف سے انار، الف سے انگور، بے سے بطخ، بے سے بس، بے سے بستہ۔ تو اگر میں آپ کو تصویر میں دوں گی، یہ بس ڈال کر دوں گی کہ اس سے
इसका पहला हुर्फ लिखो। तो बस का पहला हुर्फ क्या हुआ बच्चों? बे हुआ। तो आप बे को जानते हैं ना। तो अब यहाँ देखें, बे, पे, ते, टे और से। यहाँ पर देखें से समर, तो से। तो यहाँ पर देखें, बे के ख़ानदान में कितने हुर्फ होते हैं हम आपको पूछेंगे। तो बे के ख़ानदान में कितने हुर्फ है बच्चों? 1 2 3 4 5। कितने हुर्फ है? 5 हुर्फ है। ठीक है बच्चों। अब हम कहेंगे ते के ऊपर, यहाँ देखें, टे के ऊपर कौन सी अलामत होती है? ये आपको कौन सी अलामत दिखाई दे रही है? यहाँ पर जो है छोटा सा तोय दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? छोटा सा तोय कहेंगे, है ना, बेबी तोय, है ना। तो यहाँ पर देखें, से के पेट में बच्चों कितने नुक्ते होते हैं? मैं आपको एग्ज़ाम में ये सवाल करूँगी। तो आप से के पेट में कितने नुक्ते होते हैं बच्चों? कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 नुक्ते, है ना। तो ये कहा क्या है? से। अब यहाँ पर देखें, जीम से क्या है यहाँ पर? जीम, चीम। यहाँ पर उल्टा हो गया है हमारे पास। ठीक है बच्चों, यहाँ देखें, जीम, चीम, है ना। जीम से जहाज़ भी आता, जीम से जग भी आता, जीम से जीप भी आता। ठीक है। चीम से चिड़िया भी आता, चीम से चमचा भी आता। तो बच्चों मैं कहूँगी चीम के पेट में कितने नुक्ते होते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? कितने होंगे नुक्ते? यहाँ पर चीम के पेट में कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 3। ठीक है। चीम से पहले आने वाला हुर्फ कौन सा है? हम आपको सवाल करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? जीम। ठीक है ना बच्चों। वो हुर्फ जिसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, हम सवाल करेंगे आपसे, तो आप क्या जवाब देंगे? है। इस तरह से हम एग्ज़ाम में आपको सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये अच्छे से आप याद करेंगे। ठीक है से हलवा, ठीक है, ख़ै से खरबूज, है ना। दाल से दवाई, डाल से ढोल, जाल से ज़ख़ीरा। यानी हम, है ना, साल भर का तमाम राशन, है ना, हम क्या करें मालूम है? एक जगह, है ना, पूरे जमा करके रख लिए, तो उसको क्या कह रहे हैं? चावल, वो ये तभी सभी चीज़ें हम रख लेंगे तो उसको ज़ख़ीरा कहेंगे। तो यहाँ पर देखें, रे से रेल, अड़े से पहाड़, ड़े से कोई हुर्फ नहीं बनता, अड़े कहाँ पर आएगा? बीच में आएगा। ठीक है। जे से ज़ेब्रा, जे से ज़िंदा। यहाँ पर है, हम क्या पढ़े थे? ज़ालाबारी, यानी बारिश को कहते हैं। और यहाँ पर सीन, शीन, स्वात, ज़्वात, तोय, ज़ोए, ऐन, गैन, फे, ख़ाफ, काफ, गाफ। तो ये रहा हमारा हुर्फ़े तहजी। तो यहाँ देखें बच्चों, हम अब तक क्या पढ़े थे? देखें, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। अलिफ, बे के ख़ानदान में कितने हुर्फ़ है बच्चों? 5 हुर्फ़ है। ठीक है। पे को कितने नुक्ते होते हैं बच्चे? 3 नुक्ते होते हैं। कहाँ पर होते हैं बच्चों? नीचे होते हैं, है ना बच्चों। तो ये आप अच्छे से याद रखें। इनमें ये तमाम एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम इसको कैसे पहचानेंगे? नुक्तों से पहचानेंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, जीम, चीम, है, ख़ै। तो जीम के ख़ानदान में कितने हुर्फ़ है बच्चों? 4 हुर्फ़ हैं। ठीक है। यहाँ पर देखें, दाल, ज़ाल, दाल, ज़ाल। तो यहाँ पर डाल के ऊपर ये छोटी सी अलामत किसकी है? छोटा तोय की अलामत है। किसकी है? हमको सेम तोय की तरह दिखाई दे रहा है ये, तो ये क्या है? छोटा तोय। ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर डाली हूँ, ये क्या है? छोटा तोय। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हम क्या करे थे? ये लिखे थे। अब यहाँ देखें, सीन, शीन, दिख रहा? सीन, शीन, इसको हमको क्या करना है? मश्क करना है। ठीक है बच्चों। तो हम देखेंगे यहाँ पर अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। अब मैं कहूँगी आपको, से पहले आने वाला हुर्फ कौन सा है? टे है, या फिर जीम है, या फिर रे है। तो आप क्या कहेंगे? इन तीनों में से आपको से पहले कौन सा हुर्फ दिखाई दे रहा है? टे। ठीक है बच्चों। क्या है? से पहले टे है। तो मैं आपको एग्ज़ाम में सवाल करूँगी, से पहले आने वाला कौन सा हुर्फ है? ठीक है। रे के बाद में आने वाला कौन सा हुर्फ है? तो रे के बाद में आने वाला कौन सा हुर्फ है? अड़े है। ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए, जीम,
जीम के बाद चीम आ रहा ना, तो जीम डैश है, तो इसमें कौन सा हुर्फ आता है? तो आप क्या कहेंगे, जीम के बाद कौन सा हुर्फ आएगा? चीम, उसके बाद हम है लिख देंगे वहाँ पर ब्रैकेट में, तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पर? जीम, ऐसा डैश डाल देंगे हम चीम की जगह पर, उसके बाद हम है लिखेंगे। इन दोनों के दरमियान कौन सा हुर्फ आता है? तो कौन सा हुर्फ आएगा बच्चों? चीम। चीम के पेट में कितने नुक्ते होते हैं? इस तरह से हम कहेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से याद करेंगे। पहले आने वाले हुर्फ, बाद में आने वाले हुर्फ, कितने हुर्फ है, कितने नुक्ते हैं, कौन से हुर्फ को नुक्ते नहीं हैं, कौन से हुर्फ को एक नुक्ते हैं, कौन से हुर्फ को दो नुक्ते हैं, और कौन से हुर्फ को तीन नुक्ते हैं। इस तरह से हम सवाल बनाएंगे, तो आप अच्छे से इसको घर में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आज की डेट क्या है बच्चों, बताएं? 21 10/20 वेडनेसडे। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? उर्दू। तो क्लास वर्क आप कितने मरतबा लिखेंगे? 2 टाइम लिखेंगे। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चीम, है, खे, दाल, डाल, जाल। ये तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, दाल का ख़ानदान है ये, ठीक है। रे, अड़े, जे। रे के ख़ानदान में कितने हुर्फ हैं बच्चों? 4 हुर्फ हैं, ये भी हम आपको क्वेश्चन करेंगे। बे के ख़ानदान में कितने हुर्फ हैं बच्चों? 5 हुर्फ है, 1 2 3 4 5। बे के ख़ानदान में कितने हुर्फ है? 5 हुर्फ। जिम के ख़ानदान में जीम, चीम, है, खे। तो जोड़ियाँ कौन कौन से हैं बच्चों? सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोए, ज़ोए, ऐन, गैन, फे, खाफ, काफ, गाफ। मरकज़ वाले हुर्फ कितने हैं बच्चों? 2 हैं। मरकज़ किसे कहते हैं? ये लाइन को कहते हैं, है ना। काफ को कितने मरकज़ हैं? 1 मरकज़ हैं। गाफ को कितने मरकज़ हैं? 2 मरकज़ हैं। इसी तरह से आप एग्ज़ाम की अच्छी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अल्लाह ताला आपको कामयाब ज़िंदगी अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।